Hello students, now I'm going to continue the chapter differentiation of 12th standard. Exercise 1.1, question number 3rd and example number 6. Actually the question number 3 consists of 20 examples and which are similar to that of the question number 2nd and also 1. Just we have to use the formulas. So question number 6 we're going to start. So y is equals to root cos x plus root cos x root x. Now see differentiating with respect to x, ये जो रूट में जो cos x दिखाई दे रहा है उसके लिए हम x कंसिडर करेंगे. So we can use the formula of root x. So what is the formula of root x? It is 1 upon 2 root x. So 1 upon 2 root cos x as it is into किसके लिए x कंसिडर किया है? cos x के लिए. So cos x का डेरिवेटिव हम लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे. Remember we have to multiply the derivative of this one. Multiplication is important. प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर भी सेम ही है, रूट में ये जो टोटल कॉस रूट एक्स है उसके लिए हम एक्स कंसिडर करेंगे. सो 1 अपॉन 2 रूट एक्स द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इनटू द डेरिवेटिव ऑफ किसके लिए एक्स कंसिडर किया है? कॉस रूट एक्स के लिए. सो कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव. नाउ दिस टर्म इज एज इट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स. ये भी हम ऐसे ही लिखेंगे. डेरिवेटिव ऑफ कॉस x, ये रूट x के लिए हम x कंसिडर करेंगे. सो द डेरिवेटिव ऑफ कॉस x इज माइनस साइन रूट x इनटू अगेन द डेरिवेटिव ऑफ रूट x. नाउ सी दिस साइन x वी गोइंग टू राइट इन द न्यूमरेटर. सो माइनस साइन अपॉन 2 रूट कॉस x प्लस यहाँ पर भी ये इसके लिए हम न्यूमरेटर में ये माइनस साइन रूट x लिखेंगे अपॉन ये डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू. Now see the derivative of root x, it is 1 upon 2 root x. So this term as it is, that now this plus minus is minus sin root x upon is ये term का ये 2 और ये 2 हम उसका प्रोडक्ट करेंगे, वो आएगा 4 root x and root cos root x is as it is. So this is the answer of the question number 6. Now see the question number 7. So y is equals to log in bracket sec 3x plus tan 3x. Now see ये टोटल log का जो ब्रैकेट है इसके लिए हम x कंसिडर करेंगे. सो हमें क्या दिखाई देगा? दैट इज log x. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल्स टू द डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x. सो 1 अपॉन ये टोटल ब्रैकेट दैट इज sec 3x प्लस tan 3x इनटू जिसके लिए x कंसिडर किया है उसका डेरिवेटिव. सो dy by dx ऑफ in bracket sec 3x plus tan 3x. now ये ऐसा ही आएगा नीचे. now we going to find out the derivative of this bracket. now see first we find the derivative of sec 3x. so 3x के बदले में हम x लिखेंगे. so derivative of sec x is sec x into tan x. so sec 3x because हमने x 3x के लिए कंसिडर किया है. so sec 3x into tan 3x into derivative of किसके लिए x कंसिडर किया है? 3x के लिए. so derivative of 3x. सिमिलरली यहाँ पर भी tan x है. सो tan x का डेरिवेटिव रहता है sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x क्योंकि हमने 3x के लिए x कंसिडर किया है. नाउ सी दिस टर्म फर्स्ट टर्म इज एज इट इज. नाउ द डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3. सो यू गोइंग टू राइट दिस 3 इन द फ्रंट ऑफ दिस वन. सो 3 sec 3x इंटू tan 3x प्लस यहाँ पर भी 3x का डेरिवेटिव रहता है 3. So 3 sec square 3x. Now this term is as it is. Now from this bracket we going to take common, that is 3 common आएगा और sec 3x भी common आएगा. So यहाँ पे balance है tan 3x और यहाँ पे रहेगा sec 3x. So this sec 3x and tan 3x cancel with this one and so the answer is 3 sec 3x. So this is the answer of the question number 7. Now see question number 8. Now see यहाँ पे थोड़ा सा ये एग्जाम्पल अलग है. अलग क्या है यहाँ पे? दैट इज द x we are given in the degree. Remember that in differentiation wherever we take this x is always in radian, but in this example we are given it into x degrees. So you know that is 1 degree is equals to pi radian upon 180. So x degree is also pi x radian upon 180.
तो हमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे x डिग्रीज है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज पाई एक्स रेडियन अपॉन 180. So first step I write as it is. So since there is a division, ये जो नीचे वाला है उसको, so you know the formula of derivative of u upon v. So v square, so denominator हम square के फॉर्म में लिखेंगे. Then v ये वाला v into d by dx of u. So u ये है माइनस u as it is into derivative of v. So first step हमने लिख दी. नाउ अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे डिग्री लेके तो भी चल सकता है. अदरवाइज यू कैन पुट इंस्टेड ऑफ राइटिंग x डिग्री यू कैन राइट y x दैट इज पाई x रेडियन अपॉन 180. तो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180. कोई ज़रूरत भी नहीं है, बाद में ये कैंसिल होने वाला है, तो आपने लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चल सकता है. इंटू डेरिवेटिव ऑफ वही यही टर्म हम सिर्फ रेडियन में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं. सो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180, 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180 डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 ब्रैकेट स्क्वायर. नाउ सी थोड़ा सा ये लेंदी हो रहा है, इसलिए मैंने फिर से क्या किया है कि इसको x डिग्री में कन्वर्ट करके लिया है. लास्ट स्टेप में हम इसको फिर से डालेंगे. सो ये हमने डिग्री में कन्वर्ट करके मैंने फिर से लिख दिया. नाउ द डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0. यहाँ पर भी x डिग्री था, दैट इज 1 प्लस साइन x डिग्री. तो डेरिवेटिव हम लेने वाले हैं. सो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, आप ऐसा कंसिडर करो कि यहाँ पे x डिग्री ही है. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन x degree? So it is the cos x degree into the derivative of this part. ये आपको समझ में आना चाहिए. सो मैंने इसको वैसे ही लिख के यहाँ पे डाला है. सो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स अपॉन 180, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ x का डेरिवेटिव ले रहे हैं. सो वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ x दैट इज पाई एक्स अपॉन 180. डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. सो x डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट करके लिखा है. ये यहाँ पे हम डेरिवेटिव नहीं लेते, सो इसको x डिग्री में लिखा तो भी चल सकता है. सो 1 प्लस साइन x डिग्री डी बाई डी एक्स ऑफ द 1 का डेरिवेटिव होगा 0 माइनस. सो सी साइन ये टोटल वाला जो है वो x है. सो साइन का डेरिवेटिव साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x, ये मिडल का माइनस साइन है. सो cos x डिग्री मैंने x ही लिखा है इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये टोटल पार्ट दैट इज पाई एक्स अपॉन 180. एंड द डिनोमिनेटर इज एज इट इज. अगेन मैंने इसको कन्वर्ट किया है डिग्री में. सो हम पहले डिग्री में लेके ही लास्ट तक जाएंगे और फिर लास्ट में अगर ज़रूरत होगी तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे. सो 1 माइनस साइन एक्स डिग्री एज इट इज़. यहाँ पे 0 है. सो कॉस एक्स डिग्री मैंने ऐसे ही लिखा इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट दैट इज पाई अपॉन 180 इज कॉन्स्टेंट. सो इट इज़ एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1. सिमिलरली यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स डिग्री एज इट इज़. द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, नाउ सी यहाँ पे माइनस है. सो माइनस माइनस क्या होगा प्लस. एंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x degree is as it is and derivative of pi x upon 180 is pi upon 180. Now see these two terms carefully. Now here common क्या है, that is pi upon 180 is common. Again cos x degree is also common, so we're taking it as a common. and bracket क्या रहेगा, that is 1 minus sin x degree plus 1 plus sin x degree. so ये भी cancel होगा. so यहाँ पे क्या रह गया, that is 2. our denominator is as it is. so पाई अपॉन 180 ये वाला इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर. अगेन दिस 2 यहाँ पे रिड्यूस होगा और यहाँ पे 90 आएगा. सो पाई अपॉन 90 इंटू कॉस एक्स डिग्री ये वाला एंड 1 माइनस साइन एक्स डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. Now see the next example, that is example number 9. So y is equals to cot log x upon 2 minus log cot x upon 2. Now यहाँ पे देखिए हमें फॉर्मूला किसका पता है, cot x का पता है, log x का पता है. सो ये जो ब्रैकेट है इसके लिए हम x कंसिडर करेंगे. यहाँ पे भी मैंने x कंसिडर किया.
Now differentiating with respect to x. Now here what is the derivative of cot x? It is minus cosec square x. x क्या है? log x upon 2 into कौन x है उसका डेरिवेटिव, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बाय 2. सिमिलरली यहाँ पे माइनस दैट इज व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स? इट इज 1 अपॉन एक्स. सो 1 अपॉन एक्स क्या है? कॉट एक्स बाय 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स बाय 2. सो ये टर्म ऐसे ही हम लिखेंगे. नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन? सो हाफ हम बाहर लेंगे एंड द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाय एक्स. यहाँ पे ये ऊपर जाएगा. सो 2 अपॉन कॉट एक्स इंटू द डेरिवेटिव, यह भी हाफ है, ये 2 इसको ऐसे ही लिखेंगे हम. कॉट एक्स का डेरिवेटिव रहता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. और दिस 2 विल कैंसिल विद दिस 2. नाउ सी व्हाट इज रिमेनिंग हियर. सो माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स बाय 2 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2x प्लस यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस. सो 1 अपॉन कॉट दैट इज नथिंग बट द tan इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स. सो दिस इज द आंसर. Now see the example number 10. So y is equals to e raised to 2x minus e raised to minus 2x upon e raised to 2x plus e raised to minus 2x. Now see you know the formula of the derivative of e raised to x. सबसे सिंपल फॉर्मूला, सबसे इजी फॉर्मूला जो डेरिवेटिव का है, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ e raised to x is always e raised to x. Very simple formula. So first we're going to convert this minus powers into positive. So e raised to 2x as it is minus, इसको हम पॉजिटिव करेंगे, दैट इज़ 1 अपॉन e raised to 2x. इसके भी ऐसे ही करेंगे. ये फर्स्ट वाला एज इट इज़. नाउ हियर दैट इज़ e raised to minus 2x का हम प्लस करेंगे. नाउ यहाँ पे एलसीएम क्या होगा? e raised to 2x. नाउ क्रॉस e raised to 2x का स्क्वायर दैट इज़ e raised to 4x minus 1. यहाँ पे भी एलसीएम क्या होगा? e raised to 2x क्रॉस e raised to 2x का स्क्वायर दैट इज e raised to 4x एंड यहाँ पे प्लस 1. नाउ दिस बोथ द टर्म्स विल गेट कैंसल. सो द रिमेनिंग इज e raised to 4x minus 1 upon e raised to 4x plus 1. And now we're going to differentiate, that is differentiating with respect to x, so we'll get dy by dx. Now see here again there is a division, so u upon v का फॉर्मूला. सो डिनोमिनेटर में होगा v स्क्वायर. सो ये वाला हमने v स्क्वायर फॉर्म में लिखा है. सो v ये टर्म ऐसे ही लिखेंगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. ऐसे भी हम याद में रख सकते हैं. नाउ सी ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट हम ऐसे ही लिखेंगे. नाउ सी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स. e रेस टू 4x का डेरिवेटिव यही रहेगा इंटू ये टोटल हम x कंसिडर करके फॉर्मूला लिख रहे हैं. सो इंटू द डेरिवेटिव ऑफ 4x, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है. द डेरिवेटिव ऑफ 4x इज 4 माइनस ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव यही रहेगा e रेस टू 4x इंटू 4x का डेरिवेटिव दैट इज़ 4. यहाँ पे 1 का और यहाँ पे भी 1 का डेरिवेटिव है 0. सो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है. डिनोमिनेटर इज एज इट इज़. नाउ सी यहाँ पे भी हमें 4 e रेस टू 4x मिला है. यहाँ पे भी हमने वही टर्म दिख रही है. सो फ्रॉम बोथ दिस ब्रैकेट वी हैव टू टेक द कॉमन. So what is common? 4 into e raised to 4x is common. So in bracket what we get? E raised to 4x plus 1 minus e raised to 4x minus minus plus 1. So this both the terms will get cancelled. And last we get here 1 plus 1 that is 2 and 2 into 4 that is 8. So 8 e raised to 4x upon, so this term is as it is. ऐसा ही same example number 11 है. So 11 example is for your homework. Now see the example number 12. So see here y is equals to log tan cube x plus sin raised to 4x into x square plus 7 raised to 7. So you know the rules of log. So whenever there is a product we have to take the addition of these logs. So how we can write? So log tan x cube plus, मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया सब, just I'm simplifying the example. Now log sin raised to 4x plus ये भी log अंदर जाएगा दैट इज प्लस log x स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 7. नाउ ये भी आप सब ने सीखा है दैट इज ये जो पावर रहता है वो log में log के आगे हम लिखते हैं. सो ये क्यूब वाला मेंबर आगे आएगा. सो क्यूब log tan x. यहाँ पे भी 4 को हम आगे लिखेंगे 4 log sin x
और ये 7 भी आगे आएगा, दैट इज 7 log x square plus 7. Now in this example gets simplified. Now we're going to take the derivative. So differentiating with respect to x. So dy by dx. Now ये 3 as it is. So ये tan को हमने x consider किया है. So what is the derivative of log x? It is 1 by x. So 1 upon tan x into ये जो मैंने x जिसको consider किया है उसका derivative. So dy by dx of tan x. Again 4 is as it is. The derivative of log x. Sin x को मैंने x consider किया है. So we can use the formula of log x. So log x का formula है, that is derivative है 1 upon x. So 1 upon x, लेकिन x क्या है, sin x है, into derivative of किसके लिए मैंने x consider किया है, that is sin x. So sin x का derivative. Similarly यहाँ पे 7 as it is. So 1 upon, so log x का derivative होता है 1 upon x. So 1 upon x square plus 7 into the derivative of किसके लिए x consider किया है, x square plus 7 उसका derivative. Now see the next one. So 3 upon tan x. The derivative of tan x is sec square x. So this is the answer of the first term. यहाँ पे second वाला, that is 4 upon sin x into derivative of sin x is cos x. यहाँ पे 7 upon x square plus 7 into the derivative of, see here x square का derivative होगा 2x and 7 का derivative है 0. Now 3 tan का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट डाउन किया, दैट इज साइन अपॉन कॉस. ये इनवर्स करके कॉस ऊपर जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेक्स स्क्वायर एक्स मैंने कॉस स्क्वायर यहाँ पे पुट डाउन किया, सो दैट दिस टर्म्स विल गेट कैंसल. 4 अपॉन यहाँ पे कॉस अपॉन साइन का आंसर क्या होगा, कॉट एक्स प्लस यहाँ पे 7 2 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7. एंड लास्ट वी कैन राइट दैट इज 3 1 upon sin, that is cosec x, 1 upon cos is sec x, 4 cot x and 14x upon x square plus 7. ये ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पीछे जो आंसर दिया है आपको उसके हिसाब से अगर हमें सॉल्व करना है, मीन्स यहाँ तक आपने सॉल्व किया ये भी करेक्ट है, लेकिन पीछे का आंसर हमें अगर मैच करना है तो इसमें थोड़े से हम एक्स्ट्रा चेंजेस करेंगे. सो कैसे करेंगे ये यहाँ तक आप लिख सकते हैं. और अगर आपको एग्जाम्पल के आंसर तक जाना है टेक्स्ट बुक के पीछे जो दिया है तब हम क्या करेंगे. सो यहाँ से ये स्टेप आपको स्किप करनी पड़ेगी. और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो सी यहाँ पे हमने नीचे क्या दिख रहा है, दैट इज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. हमें ये पता है कि अगर ऐसा रहेगा, दैट इज 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसका आंसर क्या होता है आपको पता है, दैट इज साइन 2x. यस, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, 2 नहीं है. सो हम यहाँ पे 2 लेंगे और 2 देंगे, मीन्स 2 को हमें लेना भी है और देना भी है. सो हम कैसे लिखेंगे, दैट इज़ 2 मैंने लिया और इसको एडजस्ट करने के लिए मैंने 2 दे दिया. सो 2 इज कैंसिल विद दिस 2 एंड देयर इज़ नो एनी चेंज इन योर एग्जाम्पल. सो हमने इस तरह से 2 को एडजस्ट किया. सो वी कैन राइट फॉर दिस टर्म दैट इज साइन 2x एंड द रिमेनिंग टर्म्स आर एज इट इज़, देयर इज़ नो एनी चेंज. सो 3 2s are 6 मैंने यहाँ पे लिखा. इसके लिए हम क्या लिखेंगे, दैट इज साइन 2x जो फॉर्मूला है, और ये दोनों टर्म्स एज इट इज़. नाउ सी 6 इंस्टेड ऑफ राइटिंग साइन 2x हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन साइन, दैट इज कोसेक्स. सो 6 कोसेक्स 2x प्लस 4 कॉट एक्स प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7. सो दिस इज द आंसर दैट यू आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सो this is all about the examples, that is 12 examples of question number 3rd of exercise 1.1, and the remaining examples we'll see in the next lecture. Thank you.